Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today I will also teach you lesson number 3, synthetic fibers and plastics. And I will write answers of these questions which are given in the exercise of lesson number 3. Please watch this video carefully. Now just start. Characteristic of synthetic fiber. पहले कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा भी. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. Now, activity: take two clothes process of same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, the other could be a synthetic fiber. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. तो देखिए, एक नेचुरल फाइबर्स का कपड़ा है जिसमें प्राकृतिक रेशे हैं, और दूसरा मैन मेड फाइबर्स वाला कपड़ा है, सिंथेटिक कपड़ा जिसको हम बोलते हैं वो है. और उनको बराबर नाप के दो पीस ले लीजिए और उन पीसेस को मग में डुबा दीजिए. सेम टाइम, दोनों का बराबर समय ले करके अब आप उनको बाहर निकाल करके देखिए. तो जिसमें नेचुरल फाइबर्स वाला क्लोथ है उसमें पानी अधिक पानी सोख लेता है, और जो सिंथेटिक क्लोथ है वो कम पानी सोखता है. तो इस तरह से डू सिंथेटिक फाइब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइब्रिक्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? अब सुखाने रखेंगे तो जो पानी अधिक सोखता है उसको सूखने में अधिक समय लगेगा, तो जो पानी कम सोखता है उसको सूखने में कम समय लगेगा. तो व्हाट डज द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड maintenance of these fabrics compared to the natural fabric. Now plastics. What is plastics? अब प्लास्टिक क्या है? Very important heading points. You must be familiar with many plastics articles used every day. Make a list such items and their uses. आप एक लिस्ट बना सकते हैं क्या क्या आप प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं. प्लास्टिक्स is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of the units. In some it is linear, whereas in others it is cross linked. Plastic articles are available in all possible shaped
and sizes as you can see figure as chair, bucket and mug, etc. The fact is that plastic is easily moldable. For example, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. देखिए, हम प्लास्टिक को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लास्टिक का रिसाइकिल भी किया जा सकता है, इसको कलर्ड फुल भी किया जा सकता है और इसको वायर एंड सीड्स और कई रूप इसके आकारों में इसको ढाला जा सकता है वेरी इजीली, बहुत ही आसान तरीके से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर पॉलीथीन. पॉलीथीन, व्हाट इज पॉलीथीन? हम पॉलीथीन में सामान लाते हैं तो क्या है पॉलीथीन? पॉली मीन्स पॉली प्लस इथेन. देखिए, इथेन क्या है? एक केमिकल है. पॉलीथेन हो गया, तो पॉलीथेन को पॉलीथीन हम बोल देते हैं जब पॉली प्लस इथेन होता है. देखिए, पॉली प्लस इथेन, पॉली प्लस इथेन. देखिए यहां पर देख लीजिए, पॉली प्लस इथेन इज इक्वल टू पॉलीथीन. तो ये हुआ, इथेन इज अ केमिकल. ठीक, पॉलीप्लास्टिक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. देखिए, कोई प्लास्टिक को हम बड़ी आसानी से बेंड कर सकते हैं और किसी को बेंड करने के पश्चात वो करने से पहले ही टूट जाता है. तो when we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. अब thermoplastics, polythene and PVC. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. On the other hand, there are some plastics which, when molded once, can not be softened by heating. These are called thermosetting plastics. देखिए, thermoplastics and thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. अब देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक्स है, टू एग्जाम्पल्स इसके होते हैं. एक बेकेलाइट होता है और एक मेलेमाइन होता है.
बैकेलाइट को हम बैकेलाइट के लिए जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच हैं और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स हैं, और मेलामाइन जो होता है इज वर्सेटाइल मटेरियल, इट इज रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और इसमें गर्मी सहन करने की, ताप को सहन करने की और अधिक क्षमता होती है। तो ये अब इसी से संबंधित मैंने, देयर आर 2 क्वेश्चंस एट द बोर्ड, प्लीज look at the blackboard, look at the board carefully. Explain why plastics container are favored for storing food. Storing food. Plastics containers seem more convenient than metal containers. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. ये सारे इसमें गुण होते हैं। इसमें जो जब प्लास्टिक के कंटेनर में हम भोजन, खाने की वस्तुओं को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए क्यों इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है, क्यों ये अच्छा होता है? क्योंकि एक तो ये सबसे पहले कन्वीनियंट होता है, देन मेटल से भी अच्छा होता है, आज सुविधाजनक होता है कंटेनर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। एक तो लाइट वेट होता है, इसका जो वजन होता है ये मेटल से हल्का होता है। लोअर प्राइस, कम दाम पर मिल जाता है, लोअर प्राइस, कम दाम पर इसको हम खरीद सकते हैं। गुड स्ट्रेंथ, मजबूत होता है, अच्छी मजबूती होती है। एंड इजी हैंडलिंग, और हाथ में पकड़ने के लिए आसानी से इसको पकड़ा जा सकता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, अभी मैंने बताया थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द प्राइमरी फिजिकल डिफरेंस इज दैट थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिमेल्टेड। देखिए, जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको रिमेल्ट किया जा सकता है। रिमेल्ट मीन्स होता है दोबारा इसको गलाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, बैक इनटू लिक्विड, इसका पिघला करके इसको द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वेयर एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑलवेज रिमेन इन अ परमानेंट सॉलिड स्टेट। यह हमेशा ठोस अवस्था में ही रहता है, इसको गलाया नहीं जा सकता है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर्स कर दीजिएगा, ठीक। और अगली वीडियो के लिए इंतजारी करें। धन्यवाद।